is a pioneer theory in the field of locational analysis. One of the first theory है locational analysis के अंदर. यहाँ पर Johann Henrik von Thunen, he tried to find out on the basis of observation, because it is a empirical model based on observation, and theoretical in approach, deductive in approach it is, because he developed a theory but it is based on the assumption, gross generalization. तो इसमें he tried to find out the land use pattern of the agriculture. वो क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अपनी थ्योरीज में एक्सप्लेन करने की उन्होंने कोशिश की कि लैंड यूज पैटर्न क्या होता है. लैंड यूज पैटर्न का मतलब है कि इन अ पर्टिकुलर एरिया हाउ द person uses their land, for what purposes he used their land. Purposes means the communities or the local people in their farmlands practice several type of cropping pattern. So what kind of cropping pattern he practiced close to the market or the city center, and far from the city center, what kind of pattern we generally observe in a particular area, means what is the preferable patterns in a particular regions, what the people practice there. So basically in agriculture geography, when theoretizations begins, the von Thunen model, which we called agriculture location theory, is one of the first theory in this field. तो ये पायनियर मॉडल हम कहते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में. इसके लिए मैंने कल बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होगा, कि इंट्रोडक्शन में हम उनके वर्क को देखेंगे और देखेंगे कि कंटेम्प्रेरी टाइम में, प्रायर टू द von Thunen, one economist, David Ricardo, has given a concept of economic rent. And when the von Thunen started studying, observing, then he also gave a concept of locational rent, which is quite synonymous to that concept. वो बहुत मिलता जुलता concept है economic rent theory से. तो but दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है. डेविड रिकार्डो है बिकॉज उनका तो पहले ही आया इकोनॉमिक रेंट थ्योरी, और जब इन्होंने लोकेशनल रेंट की बात की, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इंक्लूड किया, और उसके आधार पे उन्होंने बताने की कोशिश की कि विच पार्ट ऑफ द लैंड, विच पीस ऑफ द लैंड इज गिविंग प्रॉफिट, मच मोर प्रॉफिट टू द पर्सन इन कंपैरिजन टू द एडजेसेंट लैंड एरिया. सो von Thunen भी ऑलमोस्ट उसी कंक्लूजन पे पहुंचे जिसके बारे में डेविड रिकार्डो ने बताया था. तो फाइनली हम उनके बीच में भी कंपैरिजन करेंगे, von Thunen आइडियाज एंड the idea of Ricardo also in initial introduction. Then I will discuss about the assumptions which is taken by the von Thunen, because based on assumption he developed his theory, the theory of agriculture location. And when you go through the assumption, you also find some demerit in the ideas. Further we will critically analyze. तो एजम्पशंस के बाद उनका थ्योरीज डिस्कस करेंगे von Thunen का. फर्दर मॉडिफिकेशन हुआ, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसको मॉडिफाई भी किया. मॉडिफिकेशन भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या मॉडिफिकेशन किया. उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे एट अ ग्लोबल लेवल एंड एप्लीकेशन ऑफ द von Thunen आइडियाज़ इन इंडिया ऑल्सो, कि क्या प्रेजेंट टाइम पीरियड में इंडिया में यह अप्लाई होता हुआ दिखता है थ्योरीज, बिकॉज बेसिकली द जोग्राफर्स theory has been applied in different geographical area, and in present context we try to find out whether there is applicability in a different part of the world or not. तो हम उसको देखने की कोशिश करते हैं. अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर फिर फाइनली क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे जिसमें मेरिट और डिमेरिट पड़ेंगे. तो कल मैंने डिस्कस कर दिया है ब्रीफली
फास्ट मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ. एज आई हैव सेड दैट it is one of the pioneer model in the field of agriculture. So agriculture location theory is one of the earliest model. Here I had clearly mentioned. Okay. Earliest model not only in the agriculture geography but geography altogether. So it is very crucial to understand this theory, and this is the theory which is the part of your syllabus. Why? Because it is one of the pioneer model. अब है कि उस समय में थ्योरिटाइजेशन प्रोसेस जब ज्योग्राफी में स्टार्ट हुआ और उसमें जब ये एक अर्लीस्ट थ्योरी है तो इसके हम रेलेवेंस को आज भी देखने की कोशिश करेंगे कि है या नहीं है, आज प्रेजेंट वर्ल्ड में ये थ्योरी रेलेवेंट है या नहीं है, और अगर है तो किस प्रोपोर्शन में, किस हद तक है. ठीक है, उसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर. फिर मैंने बताया था कि इट इज़ अ नॉर्मेटिव मॉडल and it is deductive in approach, because theoretical model is deductive in approach. Here the geographers try to assume certain thing, then he, on the basis of that, he started studying and deduce the concept and finally write the theory. So it is deductive approach. तो normative model है, deductive है, empirical observation पर based है, simplified assumption लिया, and having the positivistic currents मैंने कल बताया था, and as a result of quantitative. अभी quantitative revolution phase वो नहीं है. Quantitative revolution phase after the Second World War, the World War, when it becomes and reach at its zenith. Not in this period, but when further we compare with the quantitative revolution, we find undercurrent of it. कुछ चीज़ें सिमिलर मिलती हैं जब बाद में अप्रोच, बिकॉज हियर ही ट्राई टू अप्रोच द मैथमेटिक्स. ओके, ही टुक द मेजरमेंट एंड देन ही प्लॉट द ग्राफ ऑल्सो. सो बेसिकली ही यूज सर्टेन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स. सो यू कैन से दैट हियर देयर इज अ quantitative revolution further when occurred in the field of geography. We find here the undercurrent of quantitative revolution. Now, this agricultural location model was given by von Thunen in 1826. He wrote a book, and what is the name of the book where he mentioned his theory? The Der Isolate Stat, and this is a basically a German. In the German languages, the name of the book is Der Isolate Staat, and what is the meaning in English? The isolated state. So this is the book he wrote in which he explained his theory, and he explained his theory on the basis of observation, because yesterday I had discussed that von Thunen was itself a very prosperous man, the owner of a big estate in Mecklenburg, Germany. So he belongs to Germany, Mecklenburg, and he was very prosperous and rich owner of a large estate. So based on his observation, based on the agriculture pattern of the southern Germany, he wrote this book, and in this book he wrote his ideas, his theory, which popularly known as agriculture location theory. So please keep in mind this, the name of the book as well as the year when he came up with his ideas. Further, I had explained yesterday the basic assumptions taken by the Christoller, von Thunen. Christoller's ideas में जो हमने बात की थी, कुछ concepts की, वो यहाँ भी दिखते हैं आप. And this theory is prior to the that theory. ये इससे पहले आया है von Thunen का मॉडल क्रिस्टॉलर से. अब यहाँ देखोगे बेसिक एजम्पशन क्या लिया, आइसोलेटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया. उनकी किताब का नाम भी है द आइसोलेटेड स्टेट. सो अकॉर्डिंग टू von Thunen, व्हाट इज द आइसोलेटेड स्टेट? आइसोलेटेड स्टेट इज सेपरेट, सेग्रीगेट, वास्ट एरिया विथ कंप्लीट वाइल्डरनेस, सराउंडेड बाय द वाइल्डरनेस. दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ठीक है,
वहाँ देखेंगे तो this is the isolated state according to the Van Thunen. What he considered that there are some isolated state which is surrounded by complete wilderness. So first he assumed and इसी के आधार पे उन्होंने अपनी किताब का नाम भी रखा द आइसोलेटेड स्टेट. ओके, द डर आइसोलेट स्टार्ट इन जर्मन एंड दिस आइसोलेटेड स्टेट डोंट हैव द ट्रेड लिंकेजेस. और कहा कि ये जो आइसोलेटेड स्टेट है जिसके चारों तरफ कंप्लीट वाइल्डरनेस है, ठीक है ना, दूर दूर तक वीरान बियाबान जंगल, और यहाँ पर कोई लिंकेजेस नहीं है आउटसाइड से. देयर इज नो ट्रेड लिंकेजेस फ्रॉम आउटसाइड. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है प्रोडक्शन वहीं हो रहा है, मार्केट सेंटर वहीं है, कंजम्पशन सेंटर जिसे तुम कहते हो. देयर इज नो ट्रेड लिंकेजेस, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स बाहर से नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज नोन एज आइसोलेटेड स्टेट. He assumed. So second assumption क्या है? There is no linkage of this isolated state to the outside world, okay, or any trade center of the world. Next क्या लिया इन्होंने कि isolated state is an characterized by the isotropic surface. It is an isotropic surface. Isotropic का बताया था मतलब where the soil condition is similar, where the climatic condition is similar all across this place, okay, where the terrain is homogeneous, there is no uneven topography is flat, featureless. So he considered, third assumption is this place is the isotropic surface, okay, isotropic surface, there is complete homogeneity. This is the next assumption. What is the another assumption he took? All the transport route converge on the city center. इन्होंने कहा कि इस isolated state में एक city center है which is in the center, geometric center of this area, and whatever the transport routes are there, all the transport routes converge at the city center. What is the next assumption taken by the Van Thunen? During the description of his theory, that this isolated state, which is an isotropic surface having no trade linkages, in this isolated state there is a city center, there is a place which is well developed place, or we call it city center, and in the city center all the transport route converges, यहाँ converge करते हैं. And city center is the major center and the only center it is. This city center, this place is the only market, only consumption center in this area. Means the demand and supply is created. लोग यहीं जाकर जो चीज़ें चाहते हैं वो परचेज करेंगे, सप्लाई वहीं मिल रही है, ठीक है. सो एंटरप्रेन्योर कंजम्पशंस रिलेशनशिप वहीं पर डेवलप हो रहे हैं, डिमांड सप्लाई फुलफिल करने का सेंटर वही है. दैट इज द ओनली मार्केट विच इज अवेलेबल इन द इंटायर आइसोलेटेड स्टेट. सो व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर दैट, मैंने क्या मेंशन किया है कि द ट्रांसपोर्ट रूट्स कन्वर्ज ऑन अ सिटी सेंटर which is located in the central part of isolated state. This is isolated state and this city center is located in the central part, that is in the geometric center, and the city place or the city center is the only place where the surplus produce sale and purchase. मार्केट में वही चीजें सेल और परचेज होती हैं जो सरप्लस होती हैं, ठीक है. आप अपने सस्टेनेंस के लिए कोई ग्रो करोगे तो उसको थोड़ी ना बेचने जाओगे, क्या सेल करोगे? जो सरप्लस प्रोडक्शन है. तो सरप्लस प्रोडक्शन सेल और परचेज कहाँ हो रहा है? सिटी सेंटर में, मींस मार्केट प्लेस वो है, एंड दैट इज द ओनली मार्केट प्लेस.
In other words, the city center is a place where the demand and supply mechanism is located. So it may be asked in examinations, what is the city center according to the von Thunen? And they may give you such option. In BPSC, geography is MCQ based in optional paper, or in NEET when you are writing from geography, such kind of a question may be asked. What is city center concept developed by, assumed by the von Thunen? Now the next question is, according to the von Thunen, in 1826 there was a popular means of transport was horse cart. So what he mentioned that what is the means of transport is the horse cart in his theory, or in certain places the bullock cart, but he mentioned about the horse cart. जैसे एक्का और टमटम भी लोग कहते हैं भारत जैसे देशों में, वो अवेलेबल था वहाँ सामान ढुलाई के लिए, ठीक है, एंड और पैसेंजर्स के लिए. सो और नेक्स्ट assumption is what he considered, जैसे सेंट्रल प्लेस थ्योरी में बताया था, he also assumed that all men are the rational and economic man. And because when you look at this theory is developed basically in the capitalistic countries, developed countries. When you look at, often this theory is developed. अभी आप देखोगे, मैंने CPT मॉडल भी बताया था, डेवलप नेशंस पे अप्लाई होता है, कुछ हद तक भारत पे भी अप्लाई है, बट नॉट इन ऑल एक्सटेंट. उसी तरह ये भी. तो यहाँ अगर आप देखेंगे कैपिटलिस्ट स्टेट पे, तो क्या लोग चाहते हैं, कैपिटलिज्म प्रॉफिट मेकिंग में बिलीव करता है, कंज्यूमरिज्म में बिलीव करता है, तो प्रॉफिट मेकिंग चाहता है. ऑल द मैन आर इकोनॉमिक रेशनल मैन, वेदर इट इज एंटरप्रेन्योर और वेदर इट इज कंज्यूमर, बोथ वांटेड प्रॉफिट, both are thinking in a same way. So he left the behavioral aspect of a man. Okay, he won't considered it, who, the von Thunen, and what he assumed that all men are thinking in a same way, all are economic and rational man, all wanted profit. Okay, so here I had mentioned that the all man living in isolated state is economic and rational, always take wise and economic decision. But ऐसा नहीं होता है. In real world the situation is different. When the people learn several things, their opinion has been changed. ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे के पीछे भागे, वो बहुत सारी चीज़ें, नहीं तो लोग US से नौकरी छोड़कर, IIT से छोड़कर गाँव में जाके सर्व नहीं करते. कई सारे लोग हैं जो आपको दिखाई देगा, लोग जाके डिजीजेस ठीक नहीं करते, लोगों को सर्व नहीं करते. देयर आर सो मेनी डॉक्टर दोज हु आर सर्विंग इन रूरल एरियाज. ओके, तो लोग हैं ऐसे, वो डिपेंड करता है कि उनका विजडम क्या कहता है, उनकी थिंकिंग या थॉट प्रोसेस क्या है. सभी मैन पैसे के पीछे ही नहीं भागते, ठीक है. ऑल मैन वोंट वांटेड प्रॉफिट इन द लाइफ, ठीक है. अगर माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनका लाभ का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि कल ये बड़ा होगा तो वो उन्हें पैसे देगा, रुपए देगा. वो इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने लाइवलीहुड को जनरेट कर पाएगा, वो स्टैंड कर पाएगा. तो क्या उसके पीछे पेरेंट्स का ऑब्जेक्टिव केवल प्रॉफिट ही है लाइफ में? नो, यू कैन नॉट से दैट. नॉट अप्लाइड ऑन ऑल द पेरेंट्स. मे बी कुछ पेरेंट्स ये चाहते होंगे कि ये बड़ा हो, ठीक है, पैसे कमाए, मुझे दे, ठीक है, बट ऑल मैन आर नॉट इन द सेम कैटेगरी. तो इसलिए आप नहीं कह सकते. इन द रियल वर्ल्ड इज मच मोर कॉम्प्लेक्स. इन्होंने तो सिंप्लीफाई करके एक आइडिया ले लिया कि ऑल मैन आर इकोनॉमिक एंड द रेशनल मैन. ओके, तो सबकी थॉट प्रोसेस सिमिलर है, सब चाहते हैं प्रॉफिट मेकिंग. कैपिटलिज्म में बेनिफिट्स कैसे होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, ठीक है. सो द बिहेवियरल डिफरेंस बिटवीन द फार्मर्स ऑफ आइसोलेटेड स्टेट हैज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट. क्या नहीं लिया? बिहेवियरल डिफरेंसेस. किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में चले जाओ तो जो लोग रहते हैं
वो सब एक समान नहीं सोचते, बिहेवियरल डिफरेंसेस होते हैं। वॉन थुनेन ने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहा, इसलिए उन्होंने उसको नहीं कंसीडर किया, एज्यूम नहीं किया। उन्होंने एक सिमिलर एजम्पशन ले लिया, ऑल मैन आर इकोनॉमिक एंड रैशनल। देख उनको भी, बिकॉज ही वॉज अ वाइज मैन हैविंग द ग्रेट विजडम, तो उनको लगा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, तो वैसी चीज़ों को कंसीडर ही नहीं किया जो कॉम्प्लेक्स बना। तो सिंप्लीफाइड एजम्पशन, इसीलिए वर्ड क्या यूज करते हैं, सिंप्लीफाइड एजम्पशन। द वॉन थुनेन आइडिया इज बेस्ड ऑन सिंप्लीफाइड एजम्पशन। ठीक है, तो ये एजम्पशन आपको याद रखने होंगे, व्हाट ही एज्यूम। नाउ बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन ही स्टार्टेड स्टडिंग that isolated states and he deduced the concept, wrote that. Now we learn as a agriculture location theory. Now here try to understand, he applied three principles during the development of his theory. He applied three principles: the principle of locational rent, the principle of profit maximization. As I have said that these theories are developed in capitalistic world, and where the best way to find out the best location is the profit maximization. हम कैसे कह सकते हैं this land is suitably best for this, because if this land is provide the maximum benefit to me, then we can say that. This is a basic concept in capitalistic world. Third principle is least transportation cost. So he applied three principles. One by one we will understand this concept, what is locational rent, what is profit maximization, what is the least transport cost, how he applied this principle, and on this principle what he deduced the ideas, क्या derive किया. ठीक है, तो ये देखो one by one. First I would like to discuss here the principle of locational rent. Okay, अब देखो, gradually the geographers try to what, develop a linkages, locational rent. What we are going to learn in the locational analysis in the geography, which land is suitable for what purposes, and what is the return this land is giving to the common man or a person, those who are used that land, वो कितना return दे रही है land in a monetary term when you consider it. So what I have mentioned here, that according to the von Thunens, the major factor is the transport for the factor of locational rent. अब उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी एरिया को कंसीडर कर रहे हो, इफ यू आर कंसीडरिंग दिस एरिया, दिस लोकेशन, okay, so how much return this location is giving to you is depend largely on the transport cost. Who said that? The von Thunen. Say for example, आगे मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, देखो ये आइडियाज. This is the idea given by the David Ricardo, the concept of economic rent. He came up with the idea of margin of production, and this is the concept given by the von Thunen, and this concept, which is based on the transport cost, the concept of locational rent. What is the idea of David Ricardo? First try to understand. मैंने बताया था रिकार्डो का आइडियाज पहले आया, और जब वॉन थुनेन ने अपने आइडिया दिए तो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स मैच होता हुआ दिखाई दिया. सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर आइडियाज इन्होंने डिड्यूस किया. जो स्लाइड डिफरेंसेस है, जो सिमिलैरिटी है, उसे मैं अभी बताने वाला. नाउ हियर इफ यू कंसिडर इट, this is the y axis and this is the x axis, this is the x and this is y. Okay, here
The point is O, and the O is the city center. O क्या है? City center. If this is an isolated state, O is a city center. And you are plotting the graph. Now what he said that? उन्होंने क्या कहा अपने इस assumptions के basis पर? उन्होंने कहा देखो कि one location which we called, say for example this one A. This is the location A. This is a piece of land which we consider here in this graph A. And this is the B. And this is C. Now the David Ricardo came up with the idea of margin of production. What he said that, अब उनकी बात समझिए, यहां पर y एक्सिस पे क्या कंसीडर किया है? यील्ड को. यील्ड का मतलब है कि कितना प्रोडक्शन होता है पर हेक्टेयर. प्रोडक्शन पर हेक्टेयर इन टन. And what he considered 0.5 ton, 1 ton, 1.5 ton, 2 tons per hectare. So here in the on the y-axis there is a yield. Yield means production per hectare. And what is on the x-axis? Quality of land, which is decreasing from O towards this way. It is decreasing in this way. What he said that? What the David Ricardo? He was an economist. अब अंतर यहीं पर कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप. यहीं पर कॉन्सेप्ट में एक अंतर आ जाएगा रिकार्डो की थ्योरी और वॉन थुनेन. वॉन थुनेन का एजम्पशन याद करो. वॉन थुनेन ने अपने एजम्पशन में लिया है कि ये जो आइसोलेटेड स्टेट है ये आइसोट्रॉपिक सरफेस है. इट इज एन आइसोट्रॉपिक सरफेस. ओके. एंड व्हेन इट इज एन आइसोट्रॉपिक सरफेस, व्हाट डज इट मीन? It means that the quality of soil is homogeneous. And when the quality of soil is homogeneous, means there is a similar fertility of the soil. जब एक ही तरह की soil है तो fertility एक हो. But David Ricardo का concept ये कहता है कि the land which is close to the city are much more fertile. This piece of land is much more fertile. Much more fertile means the quality of this land is best. Quality of this land is best. This piece of land is best. Who said? David Ricardo. He considered it. And as you are moving from this way to this way, the fertility or the quality of land decreases. Means the quality of B is lower than A. The quality of C is the lower than B and A both. तो जैसे जैसे तुम सिटी सेंटर से डिस्टेंट प्लेसेस पर जाओगे, the A is close to city center. Say for example, A is this piece of land. B is another piece of land which is distant from this center place, this city center. And C ये हो गया. तो ये A, ये B, ये C. आपने उस 3 piece of land को ऐसे दिखा है. सिटी सेंटर के क्लोज सराउंडिंग में जो एरिया है वो A है. उससे दूर जाते हो तो B है, उससे और दूर जाते हो तो C है. इन द अगर हम वॉन थुनेन के आइडियाज में आइसोलेटेड स्टेट में डेविड रिकार्डो के कॉन्सेप्ट को डालने की कोशिश करें, पर वॉन थुनेन ने क्या कहा था कि ये आइसोट्रॉपिक सरफेस है, यहाँ फर्टिलिटी में कोई चेंज नहीं है. डेविड रिकार्डो का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है. वो ये कहते हैं कि सिटी सेंटर से दूर जाते हो तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अफेक्ट होती है. सबसे फर्टाइल सॉइल जो होता है वो सिटी सेंटर के सराउंडिंग का सॉइल होता है.
उससे दूर जाने से क्वालिटी ऑफ लैंड डिक्रीज होती है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज डिक्रीजिंग, क्वालिटी ऑफ लैंड इज डिक्लाइनिंग. सो व्हाट ही सेड दैट कि व्हेन यू आर practicing agriculture in the land A and when आपके पास जब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगता है, आप अपना एरिया बढ़ा देते हैं, एरिया ऑफ प्रोडक्शन, एंड व्हेन यू स्टार्टेड ग्रोइंग द क्रॉप्स इन द बी ऑल्सो, अभी क्या देखोगे कि बी के कंपैरिजन में लैंड ए जो है वो ये द मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन इज हाई. दिस मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन हाई हो गया. कितना हाई हो गया? 0.5 टन्स पर हेक्टेयर. ए में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इन कंपैरिजन टू बी. हु सेड दैट? डेविड रिकार्डो. What said that the land which is adjacent to the city center is giving you much more profit. Margin of production is high than the B. B से A का margin of production high है. कितना है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग? 0.5 टन. 1.5 टन तो ये भी दे रहा है पर हेक्टेयर, ये 2 टन दे रहा है, तो 0.5 टन एक्स्ट्रा है. अब कहा इन्होंने कि ये जो मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन है इसको मॉनेटरी टर्म में चेंज कर दो. कर सकते हो ना? ये 0.5 टन की उस समय मार्केट प्राइस क्या है उस एग्जिस्टिंग प्लेस पर, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी इतना पैसा आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है लैंड. Who said that? David Ricardo said that in his economic rent concept. In his the concept of economic rent. फिर इन्होंने कहा कि अगर सी में आप फिर से और एक्सपैंड करते हो एग्रीकल्चर और सी लैंड को भी आप यूज करते हो, तो सी का मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन, अब देखो बी जो है उसका मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन सी से 0.5 टन एक्स्ट्रा है, और अगर ए का देखोगे तो इसका 1 टन एक्स्ट्रा है. 1 टन मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए इन कंपैरिजन टू सी इज द 1 टन. You can convert that 1 ton in monetary term, and the B is 0.5 ton. ये 0.5 ton extra margin of production आपको दे रहा है in comparison to C. Like that, he plot the graph for the different field, and what the David Ricardo said that the margin of production is declining as you move from the city center to far away. Why? Because fertility of land is decreasing. ओके, एम आई क्लियर? समझ आया क्या व्हाट द डेविड रिकार्डो स्टेटेड दैट? आप लोग को समझ आया? अब अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं फिर आपको ये कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि व्हाट द वॉन थुनेन स्टेटेड, बिकॉज आवर फोकस इज द वॉन थुनेन आइडियाज, नॉट द डेविड रिकार्डो. बट मैंने चूंकि इंट्रोडक्शन में कहा कि डेविड रिकार्डो से कुछ मिलता जुलता कॉन्क्लूजन वॉन थुनेन ने भी निकाला, जबकि वॉन थुनेन जानते भी नहीं थे पर्सनली रिकार्डो को, और उन्हें पता भी नहीं था कि रिकार्डो ने ऐसा कुछ स्टडी किया. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ हियर व्हाट ही कंसीडर दैट वॉन थुनेन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट. यहाँ जो इकोनॉमिक रेंट का कॉन्सेप्ट है वी ऑल्सो कॉल्ड लोकेशनल रेंट कॉन्सेप्ट. ये इकोनॉमिक रेंट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, वॉन थुनेन इकोनॉमिक रेंट कॉन्सेप्ट और द लोकेशनल रेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है. अब इसका हम वॉन थुनेन का इकोनॉमिक रेंट या लोकेशनल रेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं. What he considered transport cost also. And what he said that this is the y-axis and this is the x-axis. What he considered on the y-axis, the price for 1 hectare of production.
यहां यील्ड नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां यील्ड है। यहां लिखा है प्राइस फॉर 1 हेक्टेयर ऑफ प्रोडक्शन। 1 हेक्टेयर में जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी प्राइसेस कितनी मिल रही। यहां लिखा है यील्ड यानी प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ओ इज द सिटी सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम ओ increases in this way, and what he considered, as the distance from city center is increasing, the cost of transport is increasing. What he considered that cost of transport is increasing. अब सिटी सेंटर के पास ही तुम कुछ चीजें ग्रो कर रहे हो, मान लो ये पीस ऑफ लैंड ए है, ये बी है और ये सी है। When you are producing anything in the close to the market, तो मार्केट तक लाने के लिए तुम्हारा कॉस्ट क्या लगेगा, बिकॉज यू आर इन क्लोज टू द मार्केट, तो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगा। इन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कंसीडर किया और बताया कि जैसे जैसे सिटी सेंटर से दूर जाओगे द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विल इंक्रीज। तो तुम्हारा जो प्रोडक्शन इनपुट है, यानी जो तुमने प्रोडक्शन के लिए खर्च किया, हार्वेस्टिंग के बाद जब अपने प्रोड्यूस को मार्केट में लेकर आओगे और उसके लिए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, ट्रांसपोर्ट का मींस वानथुनेन के समय क्या यूज करोगे, हॉर्स कार्ट, तो उसके भी चार्जेस लगेंगे। तो तुम्हारा इनपुट कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये जो होगा इसके ऊपर आप, दिस इज योर सेलिंग प्राइस, इससे तुम प्रॉफिट अर्न करना चाहोगे, क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, मार्केट में प्राइस प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इंक्रीजिंग इन दिस वे, दिस लैंड। अब देखो कि when you are producing something in the piece of land A, and when the expansions begin and you started producing in the piece of land B, the A is giving you the margin of production। अब यहां देखो A B से तुम्हें ज्यादा फायदा देगा, कितना ज्यादा, इतना, ये एडिशनल आपको प्रॉफिट्स मिलेगा। प्राइसेस फॉर 1 हेक्टेयर, यहाँ जो तुम प्रोडक्शन करोगे इसकी जो प्राइसेस आपको मिलेंगी, दैट इज द मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है इसकी इकोनॉमिक वैल्यू इस लैंड से ज्यादा बढ़ा दिया। क्यों, यहाँ मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये जो पीस ऑफ लैंड है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इस पीस ऑफ लैंड में जैसे तुम आगे बढ़ोगे यहां से चीजें यहां लाने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी एडिशन बढ़ जाएगा, इससे तुम्हारी प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगी। यहां वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लग रहे, इसलिए आपकी प्रॉफिट ज्यादा है। अगर यहां आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ठीक है नहीं लग रहा है और यहां तुम्हें 100 रुपीज का बेनिफिट्स हो रहा है, यहां पर प्रोडक्शन कर रहे हो और यहां से सामान लेके आ रहे हो, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50 रुपये लग जा रहा है और आपको 100 रुपीज का ही बेनिफिट्स अगर मिल रहा है, तो 100 माइनस 50 कर दोगे ना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस करोगे, तो ओवरऑल आपको बेनिफिट तो 50 रुपये का ही हो रहा है। फिर अगर सी के ऊपर आप जाकर प्रैक्टिस करते हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सी के कंपैरिजन में ये जो लैंड है इसका मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया और इसका तो और डबल हो गया। ठीक है, यानी ये क्यों, क्योंकि जैसे जैसे तुम सिटी सेंटर से दूर हो द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विल इंक्रीज और इनहैंस। यहां फर्टिलिटी पर फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज already the Van Thunen has assumed that entire land having the similar quality of the soil, there is no change in the quality of soil. So what is the basic difference here? He also talk about the margin of production. He is also considering that this land values is much more than this and this land.
as the Ricardo said that, but the Ricardo's idea is slightly different. He considered fertility is decreasing from the city center as you move from city center to far away areas. But what he considered that from the city center to the far away areas, the cost of transport is increasing. This is the differences between the ideas of David Ricardo's as well as the ideas of von Thunen. ये basic difference, ठीक है, वो differences आप mind में रखेंगे. तो मैंने यहाँ mention किया है in the locational rent concept earlier to von Thunen in 1817, because von Thunen ideas came in 1826. In 1817, David Ricardo propounded the concept of economic rent, and this is the objective question for you: who propounded, who coined, because it is a question in GS also, because you have to learn in economics or about David Ricardo's. So concept of economic rent, and the Ricardo stated that the economic rent of an area is the returns. What is economic rent? Try to understand, because when you have to write the economic rent briefly, economic rent किसे कहते हैं? Economic rent कहते हैं कि an area is of an area. Economic rent इसका क्या होगा? If is of this area is the return which can obtain above that which can be got from the land which is at the margin of production. ठीक है, तो ये लैंड है, उसके कंसीडरिंग में ये जो लैंड है, ठीक है, इस लैंड के बीच के गैप को ये मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन, हम इसे कहते हैं इकोनॉमिक रेंट ऑफ एन एरिया. सो इकोनॉमिक रेंट ऑफ एन एरिया इज द रिटर्न्स which can be obtained, the returns which can be obtained, okay, above that which can be got from the land which is at the margin of production. कैसे कंपेयर करोगे? फ्रॉम द एडजेसेंट पीस ऑफ लैंड. व्हाट इज द मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन? दिस मच इज इन कंपैरिजन टू दिस लैंड, एंड दिस इज गिविंग यू अ एडिशनल रिटर्न in comparison to this land. This is known as economic rent concept. Okay, he said that the fertility of the land, who said that? Ricardo, decreases away from the city center. Thus the land which is nearer to the city center yields the highest economic rent. This is the city center. If the city center is located here at O, the land which is close to the city center yields, वो आपको क्या देगा? हाईएस्ट इकोनॉमिक रेंट देगा, हाईएस्ट मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन देगा इन कंपैरिजन टू द एडजेसेंट पीस ऑफ लैंड, एडजेसेंट पीस ऑफ लैंड. ओके, हु सेड दैट? डेविड रिकार्डो. सो हाईएस्ट इकोनॉमिक रेंट इट विल प्रोवाइड द area or the location or the land which is close to the city center. This is the city center. Okay, because of greater productivity. Why? Because the soil is quite fertile, so it is much more productive. As you move from here to here, the productivity of soil decreases. Productivity decrease करेगी तो yield decrease होगा, margin of production reduce होगा. So the economic rent is the extra profit earned. In the very simple language, what is economic rent? Extra profit. आपको इतना extra profit हो रहा है ना इस लैंड के कंपैरिजन में, इस लैंड के कंपैरिजन में आपको इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ना, इस लैंड के कंपैरिजन में इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है. सो व्हाट इज इकोनॉमिक रेंट? इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न्ड over a land in relation to the nearest piece of land which is at the margin of production. हम कब कैसे कंपेयर करेंगे? नियरेस्ट पीस ऑफ लैंड से कंपेयर करेंगे. दिस इज द आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक रेंट given by the David Ricardo. And why we are mentioning the concept of economic rent in the von Thunen ideas? Because von Thunen reached on similar conclusion despite he considered a different approach.
दैट्स वाई आई हैड मेंशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फॉर क्लैरिटी, फॉर योर ओन क्लैरिटी यू मस्ट मेंशन इट व्हेन यू आर राइटिंग, ठीक है। अब वॉन थुनेन का जो लोकेशनल और इकोनॉमिक रेंट का कॉन्सेप्ट है उसे भी मैंने समझाया। व्हाट ही कंसीडर्ड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो ये मैंने रिकार्डो का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू द वॉन थुनेन, fertility of the land is equal. Why? Because the surface is isotropic. क्या surface isotropic उन्होंने पहले ही कंसीडर कर लिया। तो यहां सिटी सेंटर से तुम कितने भी किलोमीटर दूर जाओ, फर्टिलिटी सॉइल की नहीं डिक्रीज करेगी। तो क्या इसका मतलब है कि सिटी सेंटर के नजदीक भी खेती करो तो उतना ही मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन या उतना ही बेनिफिट देगा जितना सिटी से दूर? बोला ग्रोथ तो उतना ही होगा, पर हेक्टेयर आपका प्रोडक्शन तो फसल का उतना ही होगा जितना सिटी के पास या सिटी के दूर, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी तो इक्वल है। फिर इंसान को प्रॉफिट तो हर जगह फिर सिमिलर मिलना चाहिए। बोला यही तो प्रॉब्लम है कि सिमिलर नहीं है, वॉन थुनेन कहते हैं। बोला क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिटी से जो दूर करता है, सिटी ही मार्केट प्लेस है अकेला पूरे आइसोलेटेड स्टेट में। उसको कोई भी सामान बेचने, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, सिमिलर इनपुट कॉस्ट है, सेम यील्ड हो रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने यील्ड को लेकर जब शहर आता है, मीन्स मार्केट प्लेस आता है, सिटी सेंटर आता है, तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी एडिशनली ऐड हो जाता है, जो उसके बेनिफिट्स को क्या कर देता है, लो कर देता है। प्रॉफिट जो रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है वो रेवेन्यू को लेस कर देता है, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डिड्यूस कर माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, हटाना होता है, ठीक है। तब आप प्रॉफिट देखेंगे, क्योंकि वो भी आ गया एक इनपुट। सो द वॉन थुनेन stated that fertility of the land is equal everywhere because he assumed surface as isotropic and it is an isolated state. Thus, Thunen economic concept or economic rent concept is not based on fertility. The first difference with the Ricardo, and which is very important, and you may get objective also from this here, which is determined by the distance from the village or the city center, rather it is based on transportation cost. बोला फर्टिलिटी पे डिपेंड नहीं करता, फर्टिलिटी सिमिलर है, कॉस्ट पे डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। Thus the transportation cost increases away from the city center or the place. Thus the locational rent refers to the extra profit. What is the locational rent or economic rent of Von Thunen ideas? The locational rent or economic rent of land A in comparison to the land B. If you have to calculate, what you have to consider, transport cost. So what he said, that locational rent or economic rent refers to extra profit earned by the piece of land A over the piece of land B or the C due to having on transport charges. And in the above graph जो था वो मैंने यहाँ डाल दिया है below, but वहाँ above लिखा है। तो यहाँ तुमने क्या देखा कि from the city center when you are moving far away, the cost of transport is increasing, and that's why what you find that the profit is decreasing in this way. Transport cost is increasing and that's why क्या हो गया, प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगा। यहाँ तुम खेती कर रहे हो, प्रॉफिट डिक्लाइन होगा। क्यों? मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन जो है, इकोनॉमिक रेंट ऑफ दिस लैंड इज मच मोर, दिस लैंड यहाँ पे गिविंग मोर वैल्यूज, मोर प्रॉफिट टू यू, more margin of production is giving because of the transport cost. So what I have explained through this graph, if you have a less time, then you can plot a graph of Ricardo as well as Von Thunen and you can suggest your idea in a very limited word. अगर आपको उतना लिखने का समय नहीं है तो आप ग्राफ बनाइए और यहीं अपने आइडियाज को पेन डाउन कर दीजिए साइड में एग्जामिनेशन में, ठीक है। होप यू कैन अंडरस्टैंड। किसी को कोई डाउट है पूछ लो मुझसे। इकोनॉमिक रेंट, लोकेशनल रेंट, अभी आपको समझ आ गया लैंड की प्राइसेस या लैंड की वैल्यूज कैसे बढ़ जाएंगी। अब यहाँ एग्रीकल्चरिस्ट होगा और वो लैंड परचेज करना चाहेगा तो कौन सी लैंड ज़्यादा महंगी मिलेगी उसे? ये लैंड,
क्योंकि ये मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहा है। तो किसान अगर ज़मीन खरीदना चाहेगा खेती के लिए तो ये महंगी हो जाएगी ना ज़मीन। ज़मीन की प्राइसेस कैसे आप देखते हैं? मैन आर इकोनॉमिक रेशनल, मैन प्रॉफिट चाहता है, ठीक है। तो ये वैल्यूएबल हो गया एसेट इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस पीस ऑफ लैंड। तो अभी यहां पर कॉन्सेप्ट आया पहला, इकोनॉमिक और लोकेशनल रेंट कॉन्सेप्ट। दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एज आई हैव सेड दैट all these theories, earliest theories, develop in the developed world, and in developed world the capitalism उस समय अपने वो ग्रेजुअली स्प्रेड कर रहा था आइडियोलॉजीज। कैपिटलिज्म में क्या चाहते हैं, सबसे बेटर वे क्या होगा, किसी लैंड को तुम कंपेयर कर रहे हो कि वो लैंड कौन सा बेटर है, कौन सा वर्स्ट है, कौन सा मीडियम है, ठीक है, कौन तुम्हें बेटर, वो कैसे पता लगेगा? बोला कौन सा पीस ऑफ लैंड आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा उसके आधार पे। सो व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इनहेरेंट प्रिंसिपल इन द वॉन थुनेन आइडियाज। सिंस द फार्मर और द एवरी पर्सन ही ऑलरेडी एज्यूम्ड दैट इकोनॉमिक एंड रैशनल, उन्होंने पहले ही मान लिया है ऑल मैन आर थिंकिंग इन अ सेम वे, ऑल आर इकोनॉमिक एंड रेशनल मैन एंड ऑलवेज टेक अ वाइज डिसीजन, always. So profit earning is the sole motive. Profit maximization is the sole motive of every person of that isolated state. इस isolated state में जितने भी लोग रह रहे हैं, whether it is entrepreneur, as I have said, consumer, all men are economic rational man, and what is the sole motive of that person, those who are living in this isolated state according to von Thunen, is profit maximization, ठीक है। and the cropping pattern decided by the farmer will be based on the profit maximization principle। अगर आप खेती करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, तो भी आप पैसा में प्रॉफिट चाहते हैं। कंज्यूमर कोई सामान लेने जा रहा है तो वो भी देख रहा है कहाँ सस्ता और अच्छे क्वालिटी का सामान मिल रहा है, ठीक है ना। सिमिलर क्वालिटी की चीजें सस्ती कहाँ मिल रही है, कंज्यूमर भी सस्ती चीजें लेना चाहता है, वो भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो चाहे वो फार्मिंग कम्युनिटी हो जो प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे जो कंज्यूमर है जो कंजम्पशन कर रहा है, दोनों प्रॉफिट चाहते हैं। All men are economic rational man, so it is an inherent concept. This is the second principle. Now the third principle, principle of least transportation cost. अभी लोकेशनल रेंट में भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हिडन है, इकोनॉमिक रेंट। लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कहाँ सबसे कम ट्रांसपोर्ट पे खर्च होगा और किस में होगा, अभी जरा देखेंगे। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होकर आएगा और ये एक बहुत लैंडमार्क आइडियाज दिया, वेरी की आइडियाज ही डेवलप हु द वॉन थुनेन। And now you have to understand it. As you know, the farmers grow several things in the farmland. Farmers, communities grow several things in the market. They grow vegetables, and certain vegetables, when you find out, are perishable items. Say for example, if you look at cauliflower, tomato, potato, whether the life of all these crops are similar? Well, no. All these crops are not similar. We are talking about the year 1826 when he came up with these ideas. Is there any storage facility, refrigeration is available during that period of time? The answer is no. क्या मॉडर्न मीन्स ऑफ स्टोरेज हैं जहां आप स्टोर कर सकते हो? कोल्ड और वार्म स्टोरेज टाइप चीजें नहीं है ना। यानी जो प्रोडक्शन है उसको इमीडिएट
क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की और उसकी पेरिशेबिलिटी, उसकी लाइफ क्या है, उस पर डिपेंड करता है। फार्मर्स व्हीट और राइस का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब व्हीट और राइस का प्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली इसकी लाइफ इससे तो ज्यादा है ना, ये पेरिशेबल आइटम तो नहीं है ना, इमीडिएट खराब तो नहीं होगा, सड़ तो नहीं जाएगा। फ्रूट प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, फ्रूट्स पेरिशेबल आइटम होते हैं ना, इसको तो तुरंत इमीडिएटली मार्केट में सेल करना पड़ेगा ना, अदरवाइज खराब हो जाएगा, फिर ग्रोवर को वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फार्मर कम्युनिटी जो है एग्रीकल्चर में डेयरी प्रोडक्शन भी होता है ना, डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, ये भी पेरिशेबल आइटम है ना। दूध को क्या 10-12 दिन रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। टोमेटो को तो रख सकते हो 2-4-5 दिन, लेकिन क्या मिल्क रख सकते हैं? नहीं रख सकते आप। या मिल्क प्रोडक्ट उसकी लाइफ कम होती है डेयरी प्रोडक्ट। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि कुछ मटेरियल, अच्छा देखो, अगर मैं वेट की बात करूं तो अगर आपसे पूछूं कि पोटैटो अगर आप लेते हैं, पोटैटो ये बल्की है कि, बल्की मतलब हैवियर है, या व्हीट हैवियर है? कॉमन सेंसिकली आप बोलोगे कि नहीं, पोटैटो इज मच मोर बल्की देन द व्हीट। प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक पेरिशेबल आइटम, ठीक है, एक बल्कियर आइटम जो फार्मर ग्रो करते हैं। कुछ चीजें बहुत हैवी होती हैं, कुछ लाइट होते हैं। कॉटन इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विच इज वेरी लाइट, नो, पोटैटो इज बल्कियर। बल्कियर आइटम को तुम अगर ढोना दूर से शुरू करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगेगा। पेरिशेबल आइटम्स दूर से लेकर आओगे, हॉर्स कार्ट है 1826 पीरियड इट इज, तो बहुत सारे सामान सड़ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास लैंड है, पीसेज ऑफ लैंड, and you have 2 or 3 pieces of land, and this is the city center, and you have the different pieces of land far from the city center. This is the closest from the city center. हम इसको वैसे मर्ज भी कर लिया सिटी सेंटर से। Now the question is, पेरिशेबल आइटम तुम यहां ग्रो करना पसंद करोगे कि यहां? ऑफ कोर्स तुम यहां ग्रो करोगे कि मैं तुरंत इसको मार्केट में सेल करके जितना मैंने इनपुट कॉस्ट लगाया उसका आउटपुट तुरंत ले लूं। यहां से मैं लेके आऊंगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगेगा, और कई चीजें यहां से यहां कैरी करने में बीच में खराब भी हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, पेरिश हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन यहां ये नहीं है कि पेरिशेबल आइटम, अगर तुम्हें 2 प्रोडक्ट ग्रो करना है, 3 प्रोडक्ट ग्रो करना है, तुम किसको प्रेफरेंस दोगे? यहां, यहां, यहां। अगर तुम्हें टोमेटो भी ग्रो करना है, पोटैटो भी ग्रो करना है, व्हीट भी ग्रो करना है, तुम किसको प्रेफरेंस दोगे? इस एरिया में किसे लगाओगे, इस एरिया में किसे, इस एरिया में किसे? मीन्स अगर ये है सिटी सेंटर तो इस एरिया में क्या तुम ग्रो करना पसंद करोगे? इस एरिया में क्या ग्रो करना पसंद करोगे? इस एरिया में क्या ग्रो करना पसंद करोगे? यहां चॉइसेस जब लाने की बात होती है तो हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। If you have a different piece of land and you have to grow multiple crops, say for example, what is your preferences? Preferences तुम कैसे डिसाइड करोगे? बिकॉज यू आर इकोनॉमिक एंड रैशनल मैन, कहां से कौन सा प्रोडक्ट तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है उसी पे डिपेंड करता है ना तुम्हारी थॉट प्रोसेस। तो व्हाट द वांथुनेन स्टेटेड इन हिज थ्योरीज, अब ये प्रिंसिपल जो उन्होंने कंसीडर किया, देखो और समझने की कोशिश करिए। It's again a very easy concept. What he said that in this principle, what is the principle of least transportation cost?
the profit maximization depends on least transportation. Now the question is why? Well, transportation is the function of two consideration. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दो चीजों पे डिपेंड करता है. पहला, द बल्क ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ मच द हैवियर द प्रोडक्ट इज, हाउ मच बल्कियर इज द प्रोडक्ट इज. ओके, बल्कियर द गुड्स, मोर इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सामान जितना हैवी होगा ढुलाई बढ़ जाएगी सामान की. ठीक है, द गुड्स कॉस्ट विल इंक्रीज if the material is bulkier. Now, perishability of the commodities, the second, the first is the bulk of product, second is perishability of the commodities. So what is the greater the perishability means lesser time of transportation you required. अगर आपका सामान जल्दी सड़ने वाला, पेरिश होने वाला है, तो आप क्या चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुंच जाए. वरना अगर आपने 10 टन प्रोडक्शन किया, 10 टन की मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ और 1000 रुपीज़, और यहाँ तक मार्केट तक लाने में ही आपका 1 टन जो है वो पेरिश हो गया आइटम, आपको 9 टन क्या रिटर्न देगा 1000 रुपीज़? नहीं देगा. 1 टन तो पेरिश हो गया, आने में ही सड़ गया, उसे आपको हटाना होगा, वो कोई लेगा ही नहीं. 9 टन का आपको सेम रिटर्न देगा? नहीं देगा. क्या चाहोगे, इस आइटम को हम जल्दी नियर टू द सिटी सेंटर ग्रो करें. सो व्हाट ही सेड दैट ग्रेटर पेरिसिबिलिटी मीन्स द लेशर टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दस पेरिसेबल गुड मस्ट बी ग्रोन नियर टू द सिटी सेंटर टू अवॉइड द लॉसेस. हु सेड दैट? The von Thunen. अब देखो, इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ किया. ये देखिए, यहां दो क्रॉप कंसीडर कर रहे हैं इस ग्राफ में. देखो, ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, और यहां सिटी सेंटर है U, which we called market. Here there is a price which is on this axis, and here, as you know, the cost of transport is you are considering as the distance increases from the city center, the cost of transport is increasing. Transportation cost, distance from the market is increasing, the transportation cost increases on the x-axis. Now you have to grow two crops. What area you prefer for which crop? अगर आपको ये देखना है, say for example, one is the vegetable. मान लो कि तुम ग्रो करना चाहते हो टोमेटो या पोटैटो. पोटैटो से फॉर एग्जाम्पल. अब देखो, और दूसरा तुम ग्रो करना चाहते हो व्हीट. पोटैटो इज बल्कियर एंड पेरिसेबल item than wheat. Wheat is lighter and less perishable. है कि नहीं? अब देखो, तुम्हें मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा मिलेगा, प्राइसेस कहाँ? बिकॉज मैन आर इकोनॉमिक रैशनल मैन, फायदा चाहता है, दोनों खेती करना है. सिटी सेंटर के क्लोज. अब देखो ये ग्राफ क्या कहता है, व्हाट दिस ग्राफ इज सेइंग. When a person is, this is the line which is showing the production of the farm price of vegetable. ये farm price show कर रहा है किसका? पोटैटो का, say for example vegetable का.
और देखो ये दूसरी जो लाइन है, द सेकेंड लाइन, इट इज शोइंग द फार्म प्राइस ऑफ व्हीट। अब देखो, this is the potato is a perishable item and the bulkier item. If you are producing potato far from the city center, the transport cost is increasing and the loss is also maybe high. क्योंकि पोटैटो दूर लगाओगे तो वहां से लाने में कुछ पोटैटो सड़ जाएंगे, साथ ही पोटैटो बल्कियर है, हैवियर है, बल्कियर प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती। सो वेयर यू प्रेफर, ये दो देखो, क्रॉस सेक्शनल पॉइंट दोनों लाइन का क्या है, ये है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल पॉइंट। ये और ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस सेक्शन कहां कर रही है, इस पॉइंट पे। यहां से लेकर ऐसे और एक सर्कल बनाया, किसने बनाया, वांथू ने। यहां से लिया, ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, ये देखो। So he draw a circle. What he said that this land the farmer always prefer to grow the vegetable which is close to the city center. ये लैंड में फार्मर्स क्या प्रेफर करेगा, बल्कियर और पेरिशेबल आइटम को ग्रो करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि उससे उसको रिटर्न, उसको प्राइसेस ज्यादा मिलेंगे। इस एरिया के बाद अब देखो, यहां पर तुम्हारा रिटर्न आलू से इस एरिया में ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू व्हीट। व्हीट की लाइन ये है, इसकी लाइन ये है। इस सर्कल के अंदर, इस क्रॉस सेक्शन के पहले जो सर्कल ड्रॉ करोगे, इसके अंदर पोटैटो विल गिविंग यू, द वेजिटेबल विल गिविंग यू मच मोर रेवेन्यूज देन द व्हीट। बट इस क्रॉस सेक्शन के बाद देखो, व्हीट ऊपर है, पोटैटो नीचे है, लाइन देखिए। यानी अगर आप फिर से यहां से ऐसे लेकर ऐसे ड्रॉ करेंगे सर्कल, ये ड्रॉ करोगे ऐसे, यानी ये जो सिटी सेंटर से दूर का लैंड है, हियर द व्हीट विल गिव यू द मोर benefits than the potato because potato is a perishable item. If you are growing potato here and the wheat here, तो तुम्हें लॉस होगा, potato is giving loss. If you are growing wheat, wheat is giving you much more return. So like that, he plot the circle for the different crop. Who? The Von Thunen. Based on the least transportation cost principle. उन्होंने क्या किया, सर्कल बनाया और कई क्रॉप्स के लिए कई सारे सर्कल्स बनाए। देखो यहाँ इन्होंने यहाँ पर जैसे कई लाइंस ड्रॉ की हैं, देखो ठीक है। ये सबसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ है ऊपर से, सबसे पहले यहाँ नीचे ऐसे ग्रेजुअली आप देखते चलोगे लाइन ऐसे प्लॉट हो, ठीक है। देयर आर डिफरेंट आइटम्स। अब इन्होंने क्या किया, इस क्रॉस सेक्शन यहाँ से ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ बोला इंटेंसिव एग्रीकल्चर, अभी मैं बताऊंगा। फिर यहाँ से ड्रॉ किया इस पॉइंट से, बोला यहाँ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। यहाँ से ड्रॉ किया इस क्रॉस सेक्शन से, जहाँ दो लाइन क्रॉस सेक्ट करते हैं, तो यहाँ से फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ओपन एक्सेस। तो कई आइटम के लिए, कई क्रॉप्स के लिए उन्होंने ऐसे सर्कल ड्रॉस करना स्टार्ट किए। इज इट क्लियर? ये समझ आया सभी को जो मैंने बताया, द आइडियाज ऑफ वॉन थुने बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इज इट क्लियर? ये समझ आया या नहीं आया कि हाउ ही टॉक अबाउट विच क्रॉप इज सुटेबल फॉर which land is suitable for what kind of crop, and the transportation cost is depend on the two consideration. One is the perishability of the item, another is the bulk of the item or the weight of the item. Am I clear? ये समझ आया या नहीं सभी को? डाउट से तो पूछो मुझसे। सर इस ग्राफ को किसी और तरीके से नहीं बना सकते हैं क्या? और कैसे ग्राफ बनाएंगे?
ग्राफ ऐसे मतलब बनाएंगे। ग्राफ तो बनाने के लिए आपको दो एक्सिस चूज करना है और उसके ऊपर आइटम्स रखने हैं, और आइटम रखने के बाद आपको बात करनी है कि कौन सा आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न देगा। आपने ऐसे बनाया एक्स एक्सिस, ये बनाया वाई एक्सिस, ये सिटी सेंटर डेवलप किया, यहाँ लिख दोगे सिटी सेंटर, यहाँ लिख दोगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीजिंग, बिकॉज फर्टिलिटी तो सिमिलर है ना वॉन्थुनेन के आइडियाज में। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे फार्म प्राइसेस। अब यहाँ तुम आइटम्स ले रहे हो, उसको देख रहे हो कि विच आइटम इज, say for example if I am considering, I will take another color, say I am considering tomato, then what I am considering is potato, then what I am considering, ठीक है ज़रूरी नहीं है इसको हम यहाँ पे लेकर आए, then what I am considering, say for example the third items, okay, the wheat, say for example like that। तुम क्या देख रहे हो, ये पहला क्रॉस सेक्शन, यानी अगर आप ऐसे सर्कल बनाते हो, यहाँ क्या लगाना चाहिए, टोमेटो पोटैटो व्हीट। टोमेटो इज मच मोर पेरिशेबल आइटम, तो तुमको ज़्यादा प्राइसेस कौन देगा, टोमेटो देगा यहाँ इस लैंड में। ये जो लैंड पीस ऑफ लैंड है, ऐसे जो तुम ड्रॉ करोगे सर्कल, सो द फर्स्ट सर्कल, if you use this land, you should use this land for tomato purposes according to Wanthunen, then you get more and more remuneration, more and more profit। अब मतलब पोटैटो को आपको करना है तो ऑब्वियसली ये जो सर्कल बनेगा यहाँ क्रॉस सेक्शनल पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हैं एक सर्कल, तो इन दैट रीजन व्हेन यू कंपेयर कि आपको क्या देगा, यहाँ से टोमेटो की पेरिसिबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ वीट और पोटैटो दोनों सेम रिटर्न देंगे, लेकिन इसके आगे तो वीट से आपको बेटर है कि पोटैटो लगाओ ना, पोटैटो इज कंसिडरिंग मच मोर पेरिसेबल देन वीट। तो दिस 2 मिनट, सो ये जो पीस ऑफ लैंड है दैट विल गिव यू better return when you are growing potato, and this piece of land what you make the plot, ये जो सर्कल बनाओगे, this piece of land will provide better return when you grow wheat। is it tough? समझ आया क्या प्रीति? यस सर। कोई डाउट है तो पूछो। ऐसे उन्होंने कई सारे आइटम्स के लिए सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। So the Wanthunen has drawn several circles based on this principle। Now let's understand। तो ये 3 प्रिंसिपल में किसी को डाउट्स है फिर से पूछ लीजिए, तो मैं आगे बढ़ूं, और नहीं तो करें फिनिश। So here what I have mentioned that the Wanthunen made an assessment of number of agricultural products and finally reached on the conclusion and formed the concentric circle। अभी जैसे concentric circle बनाया मैंने, वैसे उन्होंने भी कई सारे नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लिया और वैसे सर्कल बनाई कि कौन सा लैंड किस प्रोडक्ट के लिए सुटेबल होगा। For different products, for each of the commodity he drew the locational rent graph, and based on maximum locational rent analysis he drew concentric circles surrounding the city center। अब इससे तो तुम्हें पता लग गया ना कि which land is giving more benefits when you are growing which kind of a crop। locational rent किसके लिए ये beneficial है, how much return this land is giving when what kind of a commodities you are growing here। so he got that idea। वो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है, जो ग्राफ मैंने बनाया उसमें लिखा है वो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है जो अभी मैंने समझाया था। इन द अबव ग्राफ O is the point which is known as city center, A is the point where the locational rent of vegetable that is tomato is similar to the wheat,
But if you have to grow both tomato and wheat, what you prefer in the first area? You are preferring what? आप पहले एरिया में क्या प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली आप पहले एरिया में प्रेफर करोगे टोमेटो या पोटैटो लगाना, ठीक है। इसी को यहाँ टोमेटो लिख दोगे तो आप जो ये पहला सर्कल है वहाँ आप क्या ग्रो करना शुरू करोगे? आप यहाँ पे पेरिशेबल आइटम ग्रो करना प्रेफर करोगे। मैंने अभी समझाया था, उसी ग्राफ को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। Based on the von Thunen ideas, and on the basis of which he draws several concentric circle. अब देखो ये जो लाइन बनाया है, इस लाइन के इधर अलग है, और ये जो ग्राफ है, ये जो हाफ ग्राफ देख रहे हो, ये मॉडिफिकेशन के बाद का ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्राफ को इन्होंने ड्रॉ किया, ये है सिटी सेंटर। अब सिटी सेंटर के अलोंग एक कंसेंट्रिक सर्किल बनाया, उसका हाफ लिया हुआ है, इधर का सेक्शन नहीं लिया हुआ है। ये जो दूसरा डायग्राम देख रहे हो ये मॉडिफिकेशन के बाद का। तो अभी तुमने क्या देखा, यहाँ पे देखो सर्कल, देखो इन दिस ग्राफ, ओके, व्हाट ही टुक हियर, ही टेक दिस वन। देखो एक सर्कल बनाया ऐसा, फिर सेकेंड सर्कल, फिर थर्ड सर्कल, फिर फोर्थ सर्कल, फिफ्थ सर्कल, सिक्स्थ सर्कल, ठीक है ना। सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3, सर्कल नंबर 4, सर्कल नंबर 5, 1 2, बीच में ये 3 रह गया, 4 5 and 6. So he developed this concentric circle. इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल बोला, ये है सिटी सेंटर। उन्होंने क्या कहा कि अगर सर्कल 1 में, यानी इस पीस ऑफ लैंड में तुम्हें चीजें प्रोड्यूस करनी है, क्या करोगे? इन्होंने कहा कि अब यहां देखो ये सिटी सेंटर है, यहां इन्होंने कहा कि इस लैंड में मार्केट गार्डनिंग और मिल्क प्रोडक्शन इज गिविंग यू मच रिटर्न। अब देखो मार्केट गार्डनिंग, why the market gardening? If you are practicing olericulture, when you are practicing floriculture, when you are practicing the horticulture, आप फ्रूट्स मार्केट में सेल करना चाहते हो, वेजिटेबल सेल करना चाहते हो, मिल्क सेल करना चाहते हो मार्केट के अंदर, ठीक है, नॉट एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप शहर के नज़दीक रहिए। शहर का मतलब, वो सिटी सेंटर का मतलब क्या है? मार्केट प्लेस, जहाँ कंज्यूमर आ रहा है, जहाँ सप्लाई डिमांड फुलफिल हो रही है, ठीक है, वो एक ही मार्केट प्लेस है वॉन थुनेन के आइसोलेटेड स्टेट का। बोला वहाँ अगर तुम प्रैक्टिस करते हो फ्रूट्स कल्टीवेशन, वेजिटेबल कल्टीवेशंस, ठीक है, वो तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट देगा। अगर वहीं दूध ले आकर तुरंत सेल करते हो, पेरिशेबल आइटम है, वो तुम्हें बेनिफिट्स देगा। सो व्हाट ही सेड दैट फर्स्ट कंसेंट्रिक सर्कल में क्या ग्रो करना है? बोला मार्केट गार्डनिंग करना है या फिर डेयरी फार्मिंग करनी है। अभी डेयरी फार्मिंग के लिए सेपरेट एरियाज भी बताएंगे, लेकिन यहाँ डेयरी फार्मिंग में मिल्क प्रोडक्ट, बिकॉज लाइव स्टॉक रेजिंग इज नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डेयरी, बट डेयरी बिजनेस आप क्लोज टू द सिटी सेंटर करो अकॉर्डिंग टू वॉन थुनेन इन द फर्स्ट कंसेंट्रिक सर्कल। देन ही ऑल्सो टॉक अबाउट द सेकेंड कंसेंट्रिक सर्कल, जो सेकेंड सर्कल बनाया उसमें भी उन्होंने आइडिया दिया कि वहां फायरवुड और लंबरिंग एक्टिविटी के लिए वो बेटर है। बोला अच्छा, अब सोचो ये 1826 टाइम पीरियड, इट इज 1826 where the people needs fuel and wood is used as a fuel. Every household need, लकड़ी का जलावन इस्तेमाल किया जाता था 1826 का समय। अब ये बल्कियर आइटम होता है, लकड़ी ढो के लाओगे दूर से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा ना तुम्हारा। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डेवलप कर लो अपने सराउंडिंग एरिया में,
तो सेकेंड कंसेंट्रिक सर्कल में उन्होंने कहा कि लंबरिंग एक्टिविटी हो, यहाँ पे फायरवुड डेवलप करना। क्यों? जलावन के लिए लकड़ी चाहिए, घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उस समय, कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी चाहिए, है ना। इवन अगर आप मिट्टी के घर बनाते थे तो रूफ के लिए लकड़ी चाहिए होती थी, घरों में गेट में विंडोज में लगाने के लिए लकड़ी चाहिए होती थी। बोला उसकी सप्लाई, दैट इज अ बल्कियर गुड्स। So according to the von Thunen, the second concentric circle is suitable for the firewood production, because during that period of time every household having the requirement of such fuels. Try to understand. Then what he said, that what is the third circle according to, बोला तीसरे सर्किल में क्या करना चाहिए भाई। So von Thunen has said that crop farming करो without fallow, intensive farming करो, कोई भी एरिया पीसेस ऑफ लैंड को खाली मत छोड़ो, फैलो मतलब परती, तब वो लैंड आपको ज्यादा रिटर्न देगी। So what he suggested, that the third circle is the farming community is using in that isolated state region where he is observing and giving more returns when the farming community are practicing the intensive farming without leaving any fallow areas. Then next circle he dedicated for the crop farming with slight fallow land and the pasture areas. इन्होंने कहा कि इसमें कुछ 14% फैलो एरिया भी रहते हैं, यानी खाली जमीन, परती जमीन है, और पास्चर लैंड भी। Then next concentric circle, three field system. यहाँ जो three field system, the field is applied for three different purposes. What are the purposes? I will going to explain you. And the sixth concentric circle is dedicated for livestock raising. The people also practicing the livestock raising. अब कोई वूल निकाल रहा है, कोई मीट भी प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, बट डेयरी के लिए सिटी सेंटर के नजदीक रहना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कंसेंट्रिक सर्किल दिया। अभी मॉडिफिकेशन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सो अकॉर्डिंग टू द वॉन थुनेन, द फर्स्ट सर्कल मार्केट गार्डनिंग, थुनेन स्टेटेड दैट नियर टू द सिटी द फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, okay, dairy product have been produced by the farmer because these are perishable good and it occupied the 1% of isolated estate. Generally it is located less than 1 kilometer to the city center. पूरे आइसोलेटेड स्टेट का केवल एक, दिस इज द आइसोलेटेड स्टेट, ये सिटी सेंटर है, इसका 1% एरिया कंसेंट्रिक सर्किल 1 है। यहाँ ये एक्टिविटी करो जो सिटी से 1 किलोमीटर के रेडियस में आता है। देन सेकेंड, वुड प्रोडक्शन, सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फायरवुड प्रोडक्शन है, क्योंकि it must be noted during von Thunen's period the most important energy resource is the fuel wood. That's why the von Thunen said that fuel, this wood is a bulkier item. If you are carrying from the far away from the city center, it will increase your cost and diminish your max profit. That's why what is, you must grow the firewood in the second circle. Then he took third circle, intensive farming, no fallow land. Grain production के लिए ये suitable है. A combination of rye and oat are found because he studied in Germany. Again occupy 3% of the total area and there are 2 to 3 season of croppings are practiced by the farming community in that land. The fourth circle is the field grass with emphasis on the dairy product. यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि पास्चर लैंड भी है। In this concentric zone, pasture land are there where livestock raising and the dairy farming practiced by the local communities, as well as certain land is also used for the cropping purposes too. Next है fifth concentric zone, extensive cropping, 3 field system. क्या कर रहे हैं लोग? 25% ऐसे 1/3 लैंड में 33% लैंड जो है ये क्या करते हैं?
ये फूड ग्रेन भी प्रोडक्शन करते हैं 33% लैंड, यानी जो फिफ्थ सर्कल है उसका 33 1/3 पार्ट फूड ग्रेन के लिए, 1/3 फॉडर के लिए, 1/3 फैलो रहेगा। फैलो क्यों? सॉइल न्यूट्रिएंट एबिलिटी मेंटेन करने के लिए। इसको कहते हैं 3 फील्ड सिस्टम। Then extensive cattle raising, the outermost circle is used for extensive cattle raising, livestock rearing, milk production like cheese, यहाँ processed food बनाओगे, animal product like meat, wool, ये यहाँ पे produce होगा, occupies 30% of the land. Beyond this ring, there is uncultivated wilderness, और सिक्स्थ सर्किल के बियॉन्ड फिर क्या होगा? वाइल्डरनेस होगा। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 and 6 सर्किल। इसके बियॉन्ड फिर देयर इज अ वाइल्डरनेस। ऑलरेडी एजम्पशन ले लिया था। तो आइसोलेटेड स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कंसेंट्रिक जोन अकॉर्डिंग टू द वॉन थ्योरम। सर्किल ऐसे 6 बनाना है, एक्सप्लेन करो। अब देखो फिर मॉडिफिकेशन भी हुआ, मॉडिफिकेशन सजेस्टेड बाय द वॉन थ्योरम। व्हाट इज द मॉडिफिकेशन ही सजेस्टेड? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। What he consider first you look at. अभी आपने देखा कि this is the city center, this is the city center when you have to draw the diagram, and what you have to draw, this is the first concentric circle, market gardening. Then this is the second concentric circle for firewood, silviculture. This is the third concentric circle intensive farming without fallow, क्रॉपिंग के लिए सुटेबल है. This is the fourth concentric circle. Livestock raising or dairy is also there because the fallow land is also available. Cropping भी हो रहा है और साथ ही साथ pasture land भी हो रहा है, तो dairy farming भी हो रही है और fallow land. Then the fifth concentric circle, if we consider ऐसा, क्योंकि हाफ तो सर्कल इधर बनेगी, तो यहाँ पर आपको बताया था कि क्या 3 फील्ड सिस्टम इज देयर. 33% ऑफ दिस लैंड इज फॉर फॉडर. इतने लैंड में फॉडर कल्टीवेशन करो, क्रॉपिंग करो, ठीक है, और फैलो छोड़ दो. 3 फील्ड सिस्टम. 33% लैंड को इस्तेमाल कर 3 डिफरेंट पर्पस. और क्या है नेक्स्ट उन्होंने क्या ड्रॉ किया? द सिक्स्थ वन, बोला आउटर एरियाज में आप लाइव स्टॉक रेज कर सकते हो हार्ड में, और बड़ी संख्या में हजारों की झुंड में कैटल रियरिंग, सीप रियरिंग, गोट रियरिंग करो, वहाँ पे मीट प्रोडक्शन करो, ठीक है, वूल प्रोडक्शन करो. अब ये तो इन्होंने समझा दिया. अभी इन्होंने क्या कंसीडर किया व्हेन ही मॉडिफाइड द सर्किल. आप इसको अच्छे से ड्रॉ करना. आई एम रफली ड्रॉज दिस. उन्होंने क्या लिया? उन्होंने कंसीडर किया कि अगर सिटी सेंटर जो है वो किसी नेविगेशन रूट से कनेक्टेड हो, इफ इट इज कनेक्टेड विथ सर्टेन नेविगेशन रूट्स, मान लो यहाँ से एक नेविगेशन रूट्स हो, मैं कोई और कलर यूज कर लूँ, ये देखो, यहाँ से एक रिवर फ्लो करती हो, ऐसे रिवर,
आपने ये कंसेंट्रिक जोन बनाया या सर्कल बनाई थी, क्या आपने कंसीडर किया था ट्रांसपोर्ट कॉस्ट? इस सिटी सेंटर से जैसे जैसे तुम दूर जाओगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज करता है ना। आपको पता है नदी में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होते, यू कैन carry the perishable item and the bulkier item through boat and it will, the cost will be less. waterways में cost कम पड़ता है, आपको बताया था ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नेविगेबल रिवर कंसीडर कर लिया कि अगर सिटी सेंटर नेविगेबल रिवर के अलोंग हो, क्योंकि कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जर्मनी में, फ्रांस में, यूरोप में जो नदी के किनारे, तो बोला वहां जो कंसेंट्रिक सर्कल है उसका एरिया इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी देख रहे हो मार्केट गार्डनिंग के लिए उन्होंने ये एरिया प्रेफर किया, इस एरिया, इसका टोटल एरिया कंसीडर करो, सर्कल का एरिया तो आप निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा कि अगर सेम सिटी सेंटर नेविगेशन रूट के लॉन्ग हो तो इसका एरिया जो है वो बढ़ जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, ऑल्टर्ड हो जाता है। उन्होंने ऐसे ड्रॉ किया, देखो। अब देखो इसको तो ऐसे ड्रॉ होना चाहिए था बेसिकली, लेकिन इतना एरिया बढ़ गया, एक्सपैंड हो गया, क्यों? अब ये मार्केट गार्डनिंग आप यहां तक कर सकते। इन्होंने क्या कहा कि ये देखो इस कंसेंट्रिक रिंग का सरफेस एरिया इनलार्ज हो गया, क्यों? अब यहां से भी लेकर आइटम यहां आते हो, यहां तक भी तुम फायरवुड फ्यूल पर्पसेस के लिए ग्रो कर सकते हो। देखो ऑब्लिटरेशन है, एरियाज कंसेंट्रिक सर्कल एग्जैक्टली नहीं है, इलोंगेटेड हो गए। अभी देखिए इस नेविगेशन रूट आने के कारण उन्होंने क्या कहा कि कैसे एक्सटेंडेड हो जाता है। अभी इसको ऐसे बनाओ, तो मैंने क्या बताया था कि जो सेकेंड हाफ है वो मॉडिफाइड डायग्राम्स बनाया हुआ था पिछले डायग्राम में, आप सेपरेट बना सकते हो बट उसके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आप पहले एक सर्कल दिखाएंगे। ये देखो ये सर्कल ऐसे जाना चाहिए था लेकिन एरिया एक्सटेंडेड हो गया, सबका एरिया इलोंगेटेड होता जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही कि यहाँ एक और सेंटर ग्रो करता है और एक सेटलमेंट जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। देयर इज अनदर कॉमर्शियल सेंटर विच ग्रो हियर इन दिस मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ देखो, यहाँ जो तुमको दिखाया था डायग्राम्स, यहाँ देखिए ये जो है लाइन, ये नेविगेबल रिवर है, ये कलर देख रहे हो ये, और देखो यही जो पहला सर्कल है, द फर्स्ट सर्कल इज ऑब्लिटरेटेड, द फर्स्ट सर्कल इज ऑब्लिटरेटेड, पहला ही सर्कल ऑब्लिटरेट हो गया, पहला फर्स्ट इस डायग्राम में है। इसको मैंने तो यहाँ तक ऐसे बनाया, यहाँ पे तो इन्होंने पूरा यहाँ तक ड्रॉ किया है, एक्सटेंड हो गया, यानी कि आप मार्केट गार्डनिंग इस एरिया तक कर सकते हो, क्लोज टू द रिवर, यहाँ से आप सिटी सेंटर इजिली पहुंच सकते हैं विथ द लिस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग द नेविगेबल रिवर। सो व्हाट, एंड द सब सेंटर इज ग्रोइंग, दिस इज द सब सेंटर, अनदर सब सेंटर इज ग्रोइंग। पहले आइसोलेटेड स्टेट में एक ही सिटी सेंटर था, लेकिन एक सब सेंटर भी ग्रो कर जाता है इन द मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट ही कंसीडर। सो ही मॉडिफाइड द कॉन्सेप्ट। सो मॉडिफिकेशन में क्या लिखना है, कि कैसे लिखना है, देखो लिखा है कि इफ नेविगेशन रूट और द नेविगेबल रिवर कनेक्ट द सिटी सेंटर, the concentric zone will not remain circular, rather it will become elongated, लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है नीचे, because the charge in the transportation cost in the river navigation will much lesser in comparison to the road transport।
तो आप दूर से भी सामान लेकर आ रहे हैं तो आपको मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन वो उतना ही दे रहा है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नदी में ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट कम लग रहे हैं। इसीलिए सर्किल क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। सर्किल अब रहा नहीं, वो पहले इधर सर्कल है, वो कंसेंट्रिक सर्किल एलोंगेटेड हो गया, क्योंकि अब आपको मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन ये ज्यादा एरिया दे रहा है। अगर आप यही प्रैक्टिस करते हो क्रॉप्स, तो कंपैरिजन पहले कम एरिया में आपको वो उसका 1% एरिया ही पूरे आइसोलेटेड स्टेट का आप यूज करते थे, अब उससे ज्यादा एरिया यूज कर सकते हो, क्योंकि आप नेविगेशन रूट के ऊपर है सिटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट व्हाट ही रेज्ड इन हिज थ्योरी, द प्रेजेंस ऑफ अनदर मार्केटिंग सेंटर डिस्टॉर्ट द सर्किल। दूसरा इन्होंने क्या कहा, एक और मार्केटिंग सेंटर, एक सब सेंटर ग्रो कर जाता है जो डिस्टॉर्ट कर देता है सर्कल को। यहां सर्कल को डिस्टॉर्ट किया, हु सेड, द वॉन थून, कि इसके कारण, इस सब सेंटर के कारण क्या हो गया, द सर्किल इज डिस्टॉर्टिंग, ओके, distorting. This is the modification suggested by von Thunen further when his theory is criticizes. He learned and modified. This is the concept of the von Thunen. What he said, I had discussed in detail. His ideas is similar to the David Ricardo. Some similarity we observe, but there is a differences, and the differences is quite landmark. When he is defining the concept of economic rent, then what the assumption von Thunen has taken, what the principles is consider, and what is the theory of von Thunen, which land is suitable for what kind of crops I had discussed. So he was the pioneer geographer who studied the land use pattern in Germany, and he designed his theory, okay. लैंड यूज पैटर्न देखा तुमने। अब इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे कि एप्लीकेशन इसका ग्लोबल या फिर रीजनल लेवल पर या इंडिया में दिखता है या नहीं। अब 1826 की थ्योरीज और 2023 में एप्लीकेशन तुम ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो उस समय की अंडरस्टैंडिंग, अभी की अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च में काफ़ी कुछ डिफरेंस है। फिर भी उसके बाद भी हम एप्लीकेबिलिटी को देखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड हियर, व्हेन यू कंसीडर द एप्लीकेशन, of course the theory is quite old, so there is a doubt in the mind when we are learning this theory that at present time it may be applicable universally. तो हमें एक बात देखना है कि क्या यूनिवर्सल एप्लीकेशन है या फिर वो कहीं पर अप्लाई हो रहा है, कहीं नहीं भी हो रहा है। लेट्स फाइंड आउट। सो व्हेन द जियोग्राफर ट्राई टू अप्लाई द von Thunen मॉडल इन अ डिफरेंट एरियाज, देन व्हाट ही फाइंड दैट देयर इज नो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, but at certain extent it is applied in a different continent, in a different region. Okay, so let's have a look. The application of von Thunen model is criticized by the various geographers. Why? Because there is no universal application according to those thinkers. तो एक चीज तो क्लियर है कि पूछेगा क्या यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, तो लिखना है नहीं। इसका मतलब लिमिटेड एप्लीकेशन, तो कुछ कमियां तो रहेंगी, ठीक है, और वो कमियां स्टडी की गई। वाइल वन geographer Chisholm, the father of economic geography, he considered, he applied the von Thunen model on a various scales such as continental scale, national scale and regional scale. So the Chisholm, which is considered as the father of economic geography, studied the von Thunen model applied in a different scale, and he explained that application. Let's understand. He drew the similar concentric ring after the study of Northwest Europe.
Now try to understand, look at the atlas and map of the northwest Europe, तभी आप समझ पाओगे. And he draw the concentric ring. When you look at the concentric ring, one he draw, because 6 concentric ring draw करने हैं ना वॉन थुनेन के आइडियाज में. अब देखो यूरोप में वो मॉडल अप्लाई होता है कि नहीं. अब आपको यूरोप को ड्रॉ करना आना चाहिए. अगर आपको एग्जाम्स में इसको दिखाना है तो आप यूरोप को ड्रॉ करो. ठीक है. Draw the Europe. Say for example, if you considered here the United Kingdom, okay, and then as you know, above the Africa and Mediterranean Sea, there is an Iberian Peninsula, and there is an Italian peninsula, as you know, the Adriatic Sea, the Greece and the Balkan peninsulas are there, and there is a Black Sea. Okay, further this is the land, and there is a margin of Caspian. Now here, when you look at Bay of Biscay, and then what you find, the Denmark, Netherlands, like cities, Scandinavian countries, and like that. अब क्या है कि this is the United Kingdom, Great Britain. अब यहाँ पर देखो लंदन है ना. आपको सिटी भी समझ में आना चाहिए. ये आइबेरियन पेनिनसुला है जिसके ऊपर पोर्तुगल, स्पेन है, फ्रांस है. नहीं तो कुछ तो कंट्री आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू ड्रॉ द कंसेंट्रिक रिंग. व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर दैट the first concentric ring when you are drawing, you have to take London, means United Kingdom, England को लेना है, Netherlands, Belgium and Luxembourg. अब क्या तुम जानते हो ये कंट्रीज को मैप के ऊपर, यानी कि तुमने अगर तुम ड्रॉ करोगे तो एक सर्कल ऐसे बनाओगे. दिस सर्कल इज गोइंग थ्रू दिस रीजन. This is the circle number 1 according to the Chisholm when he draw. उन्होंने क्या कहा कि ये जो सर्कल है, it is applied as per the von Thunen ideas. Here the people practicing what? Market gardening. As you also know, the Mediterranean climate is very suitable for market garden. इन्होंने एक सर्कल ऐसा बना दिया. वो ड्रॉ द फर्स्ट रिंग, तो आपको ये मैप बनाना होगा. यू हैव टू ड्रॉ दिस सर्कल, सर्कल नंबर 1. द सर्कल नंबर 1 कंसीडरिंग व्हाट आर द कंट्रीज? द कंट्रीज आर द बेनिलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, ल्यूएमबर्ग एंड लंदन. कंट्री देखो मैप में, सर्कल बना दो. फिर देखो सेकेंड रिंग. बोला अभी मॉडर्न टाइम में कौन यूज कर रहा है लकड़ियां? जलावन यूज करते हैं क्या? वो भी डेवलप्ड इकोनॉमी में. इतनी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, इतना प्रेशर है थर्ड वर्ल्ड के ऊपर, और आप देख रहे हो द पहल स्कीम, छोटे सिलेंडर दिए जा रहे हैं भारत में भी. अभी तो कोई फ्यूल वूड नहीं यूज कर रहा है प्रेजेंट टाइम पीरियड में, या रिस्ट्रिक्टेड है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डेवलपिंग में. डेवलप में तो नहीं. जिसॉल में स्टडी यूरोप की नॉर्थ वेस्ट यूरोप. क्या बोला? सेकेंड सर्कल इज नॉट फाउंड. यानी कि फ्यूल वुड वाला जो सर्कल वॉन थुनेन ने ड्रॉ किया था वो यहाँ नॉर्थ वेस्ट यूरोप में अप्लाई नहीं हो रहा है. वो नहीं दिखता है वो सर्कल. हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है, तो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आज के डेट में. बट वो 1826 में उसकी डिमांड थी.
So second ring is not found. So what ring is present now? Third ring. अब थर्ड रिंग में देखो, ही कंसीडर फ्रांस, इटली, हंगरी, पोलैंड, जर्मनी. अब तुम्हें ये कंट्री पता है क्या? पोलैंड इज हियर, जर्मनी इज हियर, इटली इज हियर. नो, ये सारे. तो अभी जब तुम ये रिंग बनाओगे, दूसरा एक सर्कल बनाओगे, सर्कल बड़ा बनेगा. ठीक है. सेकेंड नहीं है, थर्ड रिंग है ये, क्योंकि सेकेंड इज एब्सेंट. क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं इस रिंग में? क्या प्रैक्टिस होता था? बोला कि इंटेंसिव क्रॉपिंग प्रैक्टिस होता था. वांथुनेन ने यही बताया था ना, इंटेंसिव क्रॉपिंग विदाउट फैलो. कोई भी परती जमीन नहीं होगा, हर लैंड, पीस ऑफ लैंड में लोग खेती कर रहे हैं, क्रॉपिंग कर रहे हैं. वो यहाँ हो रहा है. वो स्टडीड, द चिसॉल्म स्टडीड. So third ring is available. The fourth ring, the Baltic countries, the Balkan countries and the part of Scandinavia. ठीक है. तो आपको समझ आना चाहिए ना कि स्कैंडिनेविया, अभी आप देखो, सॉरी, अभी दिस इज द स्कैंडिनेवियन कंट्री, बाल्टिक सी एज वेल एज द बाल्कन पेनिनसुला. तो अगला जो सर्कल है, बाल्कनाइजेशन का मतलब कई छोटे छोटे टुकड़ों में वो रीजन बाद में डिवाइड हो गए. तो सर्कल ऐसा बड़ा सर्कल बनाया ना ऐसे. अब इसको क्या कर दिया? बोला फोर्थ सर्कल. अब इसमें बाल्कन, बाल्टिक, स्कैंडिनेवियन कंट्री आ गए. फोर्थ रिंग बन गया, डेवलप हो गया. नाउ द फिफ्थ रिंग, यूरोपियन प्लेन एक्सटेंडेड टू रशिया. ओके. अब देखो, यूरोपियन प्लेन एक्सटेंडेड टू रशिया. अब एक सर्कल और डेवलप कर लो. ये आ गया ना, कैस्पियन तक लेके जाना है, ये पूरा प्लेन एरिया रशिया का. ये भी कंसीडर कर लिया. फिफ्थ क्या है? फिफ्थ, थ्री फील्ड सिस्टम. 33% लैंड फॉर द क्रॉपिंग, फॉर फॉर्डर, अदर लैंड आर फैलो. उसके अलावा साइबेरियन रशिया आगे और एक्सटेंड कर दिया. सिक्स्थ, फॉर द लाइव स्टॉक रेजिंग. सो चिसॉल्म हैज अप्लाइड द वांथुनेन मॉडल in the northwest Europe. He draw the 6 concentric circle. What he said, that second circle is missing because at present the people won't require the log for the fuel. फायरवुड नहीं चाहिए, इसलिए वो प्रैक्टिस नहीं हो रहा है. क्लोज टू द सिटी सेंटर, क्लोज टू द मार्केट. ओके. Am I clear? What is the idea given by Chisholm? How he shows the application of the Van model in the Northwest Europe? Yes or no? Clear हुआ क्या? नहीं हुआ? तो ये देखो डायग्राम है, ये यूरोप है, ठीक है ना, द ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम. और यहाँ देखिए these are the European countries. This is the circle what he draws. ठीक है, like that he draws the different circles. Circle number 1, 3, 4, 5 and then further the 6th one. ठीक है. अब देखो, further it has been studied in the North America. और ये नॉर्थ अमेरिका में भी अप्लाइड होते हैं. ये देखिए नॉर्थ अमेरिकन बेल्ट, यहाँ कंसेंट्रिक रिंग, एप्लीकेबिलिटी नॉर्थ अमेरिका में भी देखी गई. अब नॉर्थ अमेरिका में देखो, दिस इज द डेरी बेल्ट which is close to the city center. Intensive farming area of wheat belt. This is the wheat belt. लेक यहाँ पर अब कनाडा रीजन में विनीपेग, विनीपेगोसिस, मैनिटोबा, ये प्रेरी लैंड सुटेबल फॉर व्हीट कल्टीवेशन. दिस इज द कॉर्न बेल्ट. ओके, विंटर व्हीट बेल्ट. अब ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग हो रहा है ना यहाँ, ठीक है. ग्रेजिंग एंड इरिगेटेड क्रॉप रीजन,
ओल्ड कॉटन बेल्ट, तो इस तरह से वॉन्थुनेन एरियाज हैज बीन अप्लाइड। यहाँ देखो कंसेंट्रिक रिंग्स डेवलप करने की कोशिश की, रिंग नंबर 1 2 3 4। okay, so at certain extent in the northeast US the Von model is applied. We find out the concentric zone and the ring. Now what is, whether the Von is applied in India? Largely inapplicable. Why? Because land is heterogeneous, not homogeneous. Isotropic surface consider किया था ना, इंडिया में आइसोट्रॉपिक सरफेस दिखता नहीं है, लार्जली इनएप्लीकेबल है वॉन्थुनेन बिकॉज हेट्रोजेनिटी है। ओके, कंबाइंड विद डीप रूटेड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, it is the one of the oldest civilization. Here all men are not thinking in a similar way, the condition of the man is not equal, there are majority of farmer marginals हैं, ठीक है ना। Some resemblance is found around Delhi and its adjacent area but largely disappear. जैसे आप दिल्ली के आसपास देखेंगे, in the Yamuna bank, in the Ghaziabad region, the people practice मार्केट गार्डनिंग, फ्लोरिकल्चर करते हैं, वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं, दिल्ली में आके बेचते हैं। द नियर बाई रीजन फ्रॉम द NCR, द पीपल एवरी डे केम टू दिल्ली फ्रॉम सोनीपत, फ्रॉम गुरुग्राम, फ्रॉम द गाजियाबाद, ओके, एंड सेल द मिल्क प्रोडक्ट। But again the firewood is not required in Delhi, so the second circle is missing. But the third circle, when you move to the Meerut, in the Muzaffarnagar, okay, in the Haryana, the regions, the people practice intensive cropping, farmland, without fallow land, because land prices is quite high. Agricultural activity करते हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे चले जाएंगे, close to the Biznor, Roorkee. Okay, when you come to that regions, what you find? Some lands are fallow, people practicing agriculture. So what I have said, that at certain extent close to Delhi, the Von model is applicable, but not as it is what he described. All concentric zone has not developed. So in India, due to heterogeneity of land, largely this concept is inapplicable, the Von model. Am I clear? समझ आया how you have to draw the applicability of the Von ideas? Yes or no? समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. फिर है क्रिटिकल एनालिसिस, जो मैं कल 10 मिनट कर दूंगा, मतलब इट विल टेक हाफ एन आवर्स। तो कल मैं ये खत्म कर और वेवर की थ्योरीज पढ़ाऊंगा, वेवर इंडस्ट्रियल मॉडल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल इट इज in the industrial geography. तो कल मैं वो डिस्कस